یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے تاریخی شہر جھانسی میں 24 جون 2023 کو انجمن شعر و سخن کے زیر اہتمام عبدالغفار خان کی یاد میں ایک کلہن مشاعرہ و کوی سمیلن کا انعقاد مشہور سینئر شاعرہ راشدہ باقی حیا صاحبہ کی صدارت و مشہور شاعر اعجاز انصاری صاحب کی نظامت میں ہوا۔ مشاعرے کی شمع روشن کی پردیپ جین، آدتیہ پور کیندری منتری برجیندر ویاس، ڈمڈم مہاراج پور ودھایک یعقوب احمد منصوری ایڈوکیٹ، راجیو رائے ویپاری نیتا، راج کمار انجم نے مشاعرے کے کنوینر رہے۔ مہمان نواز شخصیت جھانسی کے مشہور شاعر عبدالجبار شارب صاحب، جن کا شانہ بشانہ ساتھ نبھایا۔ ریشمہ خان، عبدالسلیم خان ایڈوکیٹ، دل شیر دل، مدثر خان، عثمان اشک، عابد خان، عارف خان، آصف خان نے اس مشاعرے کی جوائنٹ کنوینر رہیں۔ سشری سیما سنگھ وسندھرا فائنانس گروپ اور شاعر جاوید انور صاحب۔ اس مشاعرے کی ابتدائی نظامت شاعر و کوی ارجن سنگھ چاند نے کی۔ ایسے معتبر شاعر کے لیے ماحول سازگار کرنا چاہتا تھا، ماحول بنانا چاہتا تھا، جو بہت شاہکار نظمیں کہتے ہیں، دیوبند سے آئے ہیں، جن کے قومی گیت سے اس مشاعرے کا آغاز کیا تھا۔ میری مراد ہے جناب جاوید آسی صاحب تشریف لائیں اور اپنی کسی شاہکار نظم سے اس مشاعرے میں نوازیں۔ محترم حضرات، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام مرحوم غفار خان صاحب کی یاد میں ہے، اور یہ زمین ویروں کی زمین ویرانگنا، یہاں سے سب سے پہلے 4 مصرے ملاحظہ فرمائے۔ عرض کرتا ہوں کہ وفا خلوص محبت میں سب سے آگے ہیں۔ اسرار بھائی، وفا خلوص محبت میں سب سے آگے ہیں، سخن شناس و سماعت میں سب سے آگے ہیں۔ بتا رہی ہے یہ تاریخ لکشمی بائی، یہاں کے لوگ شجاعت میں سب سے آگے ہیں۔ بتا رہی ہے یہ تاریخ لکشمی بائی، یہاں کے لوگ شجاعت میں سب سے آگے ہیں۔ اور یہ جبار بھائی 4 مصرے عرض یوں کرتا ہوں کہ جہان فانی سے مانا گزر گئے غفار۔ جبار بھائی، جہان فانی سے مانا گزر گئے غفار، ہمارے ذہن تو خوشبو سے بھر گئے غفار، وہ اپنے فن سے ہوئے آج زندہ جاوید۔ یہ تم سے کس نے کہا ہے کہ مر گئے غفار؟ اب ان سے بتائیے کہ اب انہیں کہاں تلاش کیا جائے؟ چونکہ وہ شاعر تو نہیں تھے، آواز ان کی اچھی تھی، ترنم تھا، ادب نواز تھے، شاعر نواز تھے اور مہمان نواز تھے۔ تو اب یہاں سے ملاحظہ فرمائے، حاضر کرتا ہوں کسی بھی ٹرین سے نکل جائے اعجاز بھائی، ہو جا رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے، عرض یوں کرتا ہوں 4 مصرے یہاں سے ملاحظہ فرمائے، نظم بھی پیش کر دوں گا۔ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جسم پہ کپڑے پھٹے صحیح لیکن، ہمارے جسم پہ کپڑے پھٹے صحیح لیکن تمام شہر بڑا احترام کرتا ہے۔ ہمارے جسم پہ کپڑے پھٹے صحیح لیکن تمام شہر بڑا احترام کرتا ہے۔ خدا کا شکر ہے ہم خستہ حال لوگوں کو امیر شہر بھی جھک کر سلام کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، آپ صدیق ہیں، کسی کا حق نہیں رکھتے۔ 4 مصرے میں عرض کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں اعجاز انصاری صاحب کے لیے، جناب جی ملاحظہ فرمائش کرتا ہوں کہ میرے محبوب جب تو بولتا ہے، ساگر صاحب، میرے محبوب جب تو بولتا ہے تیری باتوں میں جادو بولتا ہے۔ واہ واہ واہ، میرے محبوب جب تو بولتا ہے تیری باتوں میں جادو بولتا ہے، فدا ہونے کو دل کرتا ہے تجھ پر، تو جب ہنس ہنس کے اردو بولتا ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے، واہ واہ واہ، فدا ہونے کو دل کرتا ہے تجھ پر، تو جب ہنس ہنس کے اردو بولتا ہے۔ یہ بھی ملاحظہ فرمائے، عرض کرتا ہوں یہ تھا بولتا ہے، اب بولتے ہیں، ملاحظہ فرمائے۔ عرض کرتا ہوں کہ یہ معنی عادتاً کم بولتے ہیں، یہ معنی عادتاً کم بولتے ہیں، یہ معنی عادتاً کم بولتے ہیں، جہاں ڈر
डरते हैं सब हम बोलते हैं। वाह वाह वाह। ये माना आदतन कम बोलते हैं, जहां डरते हैं सब हम बोलते हैं। निखर जाते हैं जिससे रुख गुलों के, उसे उर्दू में शबनम बोलते हैं। क्या कहने, क्या, वाह वाह वाह। निखर जाते हैं जिससे रुख गुलों के, उसे उर्दू में शबनम बोलते हैं। ये सब सदका है नन्ही एड़ियों का, जिसे हम लोग जमजम बोलते हैं। और फिर ये भी मुलाहिजा फरमाए, अर्ज करता हूँ एक दो गजल जल्दी जल्दी तहत में सुना के एक छोटी सी नज़्म आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मुलाहिजा फरमाए, अर्ज करता हूँ, मैंने कहा कि नज़्म के लिए बुलाया था। जी जी जी। गफ्फार भाई, जब्बार भाई, मतलब गफ्फार भाई, जब्बार भाई, दोनों हम लतीफ़ हम काफिया मुलाहिजा खास तौर से फरमाए। अर्ज करता हूँ कि ये अलग बात कि कोशिश में जमाने लग गए। जी जी जी। ये अलग बात कि कोशिश में जमाने लग गए, दुश्मनों के तो मगर होश ठिकाने लग गए। वाह। ये अलग बात के कोशिश में जमाने लग गए, दुश्मनों के तो मगर होश ठिकाने लग गए। हम जो महफिल में कभी शेर सुनाने लग गए, सुनने वाले तेरी तस्वीर बनाने लग गए। वाह। हम जो महफिल में कभी शेर सुनाने लग गए, सुनने वाले तेरी तस्वीर बनाने लग गए। जब कलम उठा तेरे हुस्न की रानाई पर, जब कलम उठा तेरे हुस्न की रानाई पर, लफ्ज फूलों की तरह खुशबू लुटाने लग गए। वाह। लफ्ज फूलों की तरह खुशबू लुटाने लग गए। और हम जहां ये भी लफ्ज फूलों की तरह खुशबू लुटाने लग गए। नींद का ख्वाब से रिश्ता है इसी ज़ौक़ में हम, नींद का ख्वाब से रिश्ता है इसी ज़ौक़ में हम। शाम से पहले चिरागों को जलाने लग गए। क्या? शाम से पहले चिरागों को जलाने, एक बदला चंद शेर और मुलाहिजा फरमाए कि आप थोड़ा सा मेरे ख्याल से बेदार नहीं है, ये थक गए, आपकी समातें थक गई हैं। अर्ज करता हूं कि ये मंजर देखकर मेरा सितमगर टूट जाता है, ये मंजर देखकर मेरा सितमगर टूट जाता है। मेरी गर्दन पे जब आता है खंजर टूट जाता है। ये मंजर देखकर मेरा सितमगर टूट जाता है, मेरी गर्दन पे जब आता है खंजर टूट जाता है। नजर के सामने औकात क्या है शीशा दिल की, नजर पत्थर को लग जाए तो पत्थर टूट जाता है। वाह वाह वाह। ये मंजर देखकर मेरा सितमगर टूट जाता है, मेरी गर्दन पे जब आता है खंजर टूट जाता है। नजर के सामने औकात क्या है शीशा दिल की, नजर पत्थर को लग जाए तो पत्थर टूट जाता है। और कभी अशार की मिलती नहीं महफिल में जब उजरत, कभी अशार की मिलती नहीं महफिल में जब उजरत। खामोशी के तसलसल से सुखनवर टूट जाता है। वाह। खामोशी के तसलसल से खामोशी इनायत। वाह वाह वाह। नजर के सामने औकात क्या है शीशा दिल की, नजर पत्थर को लग जाए तो पत्थर टूट जाता है। कभी अशार की मिलती नहीं महफिल में जब उजरत, खामोशी के तसलसल से सुखनवर टूट जाता है। हम उन हालात से भी बारहा हंसकर गुजर आए, हम उन हालात से भी बारहा हंसकर गुजर आए कि जिन हालात में इंसान अक्सर टूट जाता है। वाह। हम उन हालात से भी हम उन हालात में भी बारहा, हम उन हालात से भी बारहा हंसकर गुजर आए कि जिन हालात में इंसान अक्सर टूट जाता है। शेर मुलाहिजा फरमाए, जमाने की कोई भी शय उसे बहला नहीं सकती। वाह। जमाने की कोई भी शय उसे बहला नहीं सकती। कोई इंसान जब अंदर ही अंदर टूट जाता है। क्या कहने, क्या? जमाने की कोई भी शय उसे, मैंने पत्थर एक काफिया इस्तेमाल किया था, पत्थर दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूं, तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, अगर टूट जाए तो उधर से आवाज आनी चाहिए। शेर मुलाहिजा फरमाए, जमाने की कोई भी शय उसे बहला नहीं सकती। कोई इंसान जब अंदर ही अंदर टूट जाता है, उन्हें देखा जो पहली बार तो दिल ने किया तस्लीम। वाह। उन्हें देखा जो पहली बार तो दिल ने किया तस्लीम। कुछ ऐसे फूल भी है जिनसे पत्थर टूट जाता है। क्या कहने भाई, क्या कहने। वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। मैं दरअसल मैं चाहता हूं कि नज्म तो मैं वो कर दूं, एक गजल और सुनाता हूं। ये रदीफ है, टूट जाती है, अगर आप इस समात को। जावेद साहब, मैंने नज्म के लिए आपसे खुसूसी तौर से दरख्वास्त की थी, वक्त भी कुछ शायद अब बहुत ज्यादा इजाजत नहीं दे पा रहा है। अच्छा, नज्म थोड़ी सी तवील होती है, मैं टूट जाती है,
एक दो शेर सुना दो, शेर मुलाजा फरमाए। अर्ज करता हूँ जावेद साहब, जावेद अनवर साहब, आरिफ भाई, जब्बार भाई, रहमान साहब, मुलाजा फरमाए। अर्ज करता हूँ न हो ससुराल में इज्जत तो बेटी टूट जाती है। वाह, खवातीन हजरात, मेरी माई बहनें यहाँ तशरीफ रखती हैं, मुलाजा फरमाए। न हो ससुराल में इज्जत तो बेटी टूट जाती है, हवा के साथ बारिश में ये छतरी टूट जाती है। न हो ससुराल में इज्जत तो बेटी टूट जाती है, हवा के साथ बारिश में ये छतरी टूट जाती है। और किसी इंसान के जब घर की कमाई टूट जाती है, बुढ़ापा तो बुढ़ापा है, जवानी टूट जाती है। किसी इंसान के जब घर की कमाई टूट जाती है, बुढ़ापा तो बुढ़ापा है, जवानी, शेर आ रहा है, मुलाजा फरमाए। जवान, बुढ़ापा तो बुढ़ापा है, जवानी टूट जाती है। नसीहत अपने बच्चों को सरे बाजार मत करना। वाह, कि नसीहत अपने बच्चों, बुढ़ापा तो बुढ़ापा है, जवानी टूट जाती है। नसीहत अपने बच्चों को सरे बाजार मत करना, कभी ताला नहीं खुलता है, चाबी टूट जाती है। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई। नसीहत अपने बच्चों को सरे बाजार मत करना, कभी ताला नहीं खुलता है, चाबी टूट जाती है। और गुजारा कर तो ले हम फाका मस्ती और किराए पर, गुजारा कर तो ले हम फाका मस्ती और किराए पर, मुसलसल तंज सह सह कर गरीबी टूट जाती है। मुसलसल तंज सह सह कर गरीबी टूट जाती है। हमारे सर का साया मुस्तकिल खतरे में रहता है, हमारे सर का साया मुस्तकिल खतरे में रहता है। तरक्की शहर में होती है, झुग्गी टूट जाती है। वाह, हमारे सर का साया मुस्तकिल खतरे में रहता है, तरक्की शहर में होती है, झुग्गी टूट जाती है। शेर मुलाजा फरमाए। वो बूढ़ा बाप कब तक मुश्किलों का सामना करता, वो बूढ़ा बाप कब तक मुश्किलों का सामना करता, ज्यादा सूख जाती है तो लकड़ी टूट जाती है। और ये आजम भाई जी जी, मिसरा आपके यहाँ का है, उस पर तस्वीर मुलाजा फरमाए। आपके शहर का मिसरा है, मुलाजा फरमाए। वो बूढ़ा बाप कब तक मुश्किलों का सामना करता, ज्यादा सूख जाती है तो लकड़ी टूट जाती है। मेरे घर को मुकम्मल कपड़े जाने कब मयसर हो, मेरे घर को मुकम्मल कपड़े जाने कब मयसर हो, जो टेबल ठीक करवाता हूँ कुर्सी टूट जाती है। अच्छा है। मेरे घर को मुकम्मल कपड़े जाने कब मैसर हो, जो टेबल ठीक करवाता हूँ कुर्सी टूट जाती है। आखिरी शेर गजल का, जो टेबल ठीक करवाता हूँ कुर्सी टूट जाती है। कोई एक कश लगाकर फेंक देता है सिगार अपना, अच्छा, कोई एक कश लगाकर फेंक देता है सिगार अपना, कोई अफसोस करता है जो बीड़ी टूट जाती है। वाह 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 वाह, बहुत चलिए, बहुत। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।